Good morning class, how are you all? Okay, so today what we will do, we will read these sentences from Hindi to English, how to convert these sentences, because sometimes you face problem while changing the sentences in English language. So how to convert these sentences from Hindi to English we will do today. So let's just start our sentences. So our first sentence is, first we will read in Hindi. So that is our, क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ? तो क्या मैं, here what this is doing? It is asking a question. Okay? So क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ? So can I take a day off? So and you have to remember one thing कि हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमको वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन नहीं चाहिए. वी डोंट वांट वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन. व्हाट डू वी वांट? हमको प्रॉपर लैंग्वेज देखनी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में कई चेंजेस होते हैं, बिकॉज क्या होता है, हिंदी में हर चीज़ की पोजीशंस अलग होती हैं, एंड जब वी कन्वर्ट इन इंग्लिश द पोजीशंस ऑफ द words and the verbs and subjects and everything is different. So there are some rules that we have to apply while changing, but right now we will discuss these sentences, and these rules we will discuss in our next class. Okay, so first what we will do, क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ? Can I take a day off? कल मेरी छुट्टी है. तो कल मेरी छुट्टी है, tomorrow is my day off. कल मेरी छुट्टी है. So these are the basic sentences that we can use in our day-to-day life. So we should start using these sentences. So it will improve our conversation skills, and it will also improve our writing skills, because when we will read about small sentences and we will learn about small sentences, we will get to know that how these changes occurs. So ये सारे sentences हम daily use करते हैं, we use daily. So this the same way you can use these sentences in your English conversations. Asking questions, giving answers, बहुत सारी चीज़ें हैं that we can use. Yes, so let's continue. कल मेरी छुट्टी है. Tomorrow is my day off. कल मेरी छुट्टी है. Tomorrow is my day off. क्या तुम अभी अभी उठी हो? Did you just wake up? So here you can see, क्या तुम अभी अभी उठी हो. हिंदी में तो हमने ऐसे बोल दिया, but in English we cannot convert that. Did you just wake up? No. Did you just wake up? क्या तुम अभी उठी हो? Okay. Next is our, ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्या हो रहा है? Sometimes we speak like that. So what is all this? What is all this? ये सब क्या हो रहा है? What is all this going on? ये भी हम बोलते हैं जब क्या हो रहा है. And what is all this? ये सब क्या है? So for that we will use what is all this. Next, मैं थोड़ा ले लूँ. कोई चीज़ होती है, when someone is eating something, जब कोई कुछ खा रहा होता है तो बोलते हैं ना, मैं भी थोड़ा ले सकते हैं इसमें से, क्या मैं थोड़ा ले लूँ? So that is our, can I take a little bit? Can I take a little bit? थोड़ा, little bit. Okay? Next. Okay, so our next sentence, next is, ये सब क्या है? What is all this? Now next is, मैं थोड़ा ले लूँ. Can I take a little bit? तो जब थोड़ी सी चीज़ के बारे में बात करते हैं तब what we say? Little bit. ठीक है, थोड़ा का मतलब होता है little. ओके, एंड वैसे भी जब कुछ चीज़ के बारे में बात करते हैं, व्हेन ईटेबल्स के बारे में बात करते हैं, सो ऑलवेज वी यूज लिटिल फॉर दैट. ओके, नाउ अभी नहीं, नॉट येट, नॉट येट, या फिर नॉट नाउ. ठीक है, सो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, हिंदी में तो हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में अभी नहीं ही बोलते हैं. ठीक है, कोई हमको पूछता है, व्हेन समवन आस्क्स अस कि आपका ये काम हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट येट, अभी तक नहीं हुआ है, नॉट येट. ठीक है, एंड व्हेन समवन आस्क कि क्या तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो, तो अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं जाना है मुझे, अभी मुझे कुछ और काम है, सो आई विल गो लेटर.
So in when you are writing in Hindi, then that is used अभी नहीं, दोनों context में अभी नहीं use होगा. But when we write in English, you can change according to your need of the sentence. Not yet कि अभी नहीं हुआ है, और not now, नहीं अभी नहीं फिर कभी. So for this you can use according to the need of the sentence. हम sentence की need के according ये use कर सकते हैं. Our next sentence is पर मुझे अभी चाहिए था, बट मुझे तो अभी चाहिए, मैं बाद में वेट नहीं कर सकती. सो बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ. आपने तो बोल दिया कि नहीं अभी नहीं, अभी हुआ नहीं, बट सपोज इन योर टीचर इज आस्किंग यू दैट you have completed your work, so what did you say? No ma'am, not yet. But teacher says but I want it just right now. So ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ दिस. आपके पेरेंट्स पूछते हैं आपको कि आपका होमवर्क हो गया है, तो आप बोलते हैं ना नॉट येट कंप्लीटेड. सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ बट योर पेरेंट्स सेज बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ, बट मुझे ये अभी चाहिए था, तो आपका कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क ऑन टाइम. कुछ गड़बड़ है क्या? इज समथिंग रॉन्ग? कुछ गड़बड़ है क्या? कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है क्या? सो इज समथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गड़बड़ है? सो दीज आर दी सेंटेंसेज विच यू कैन यूज़ लाइक दैट. नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है. नहीं, नो नथिंग इज रॉन्ग. नो नथिंग इज रॉन्ग. मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ. I'll catch you later. I'll catch you later. Catch you का मतलब ये नहीं है कि पकड़ना है. I'll catch you मिलते हैं, उसमें भी हम catch you यूज़ कर सकते हैं. So I'll catch you later. Let's just recall all these sentences once again. So we will start from our first sentence. Yes. So क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ? Can I take a day off? Can I take a day off? कल मेरी छुट्टी है. Tomorrow is my day off. Tomorrow is my day off. क्या तुम अभी अभी उठी हो? Did you just wake up? ये सब क्या है? ये सब क्या है? What is all this? मैं थोड़ा ले लूँ? Can I take a little bit? अभी नहीं. Not yet. पर मुझे अभी चाहिए. But I wanted it right now. So in that case, अगर हम यहाँ से ये सोचते हैं तो हम किसी खाने की चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. Likewise, सब क्या है? मैं थोड़ा ले लूँ. ओके, तो मैं थोड़ा ले लूँ, जो आप खा रहे हो उसमें से मैं थोड़ा सा ले लूँ. तो बोला नहीं अभी नहीं लेना है, तो पर मुझे अभी चाहिए, मुझे तो अभी खाना था. ठीक है. सो वो कैन आई टेक अ लिटिल बिट? नॉट येट, बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ. नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट. कुछ गड़बड़ है क्या? इज समथिंग रॉन्ग? नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है. नो नथिंग इज रॉन्ग. मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ. I'll catch you later. So I'll catch you later in our next class. Bye bye. Have a nice day. See you in next class.